Hello everyone, good morning. Guys, please confirm if my audio is clear, my screen visible, legible. Okay, very well. So let's begin where we left last time. Last time आप लोग decision tree देख रहे थे. We saw decision tree. How does it work? What is the idea behind the decision tree? And how it does what it does. Then we saw there are various advantages of decision tree. Advantages over your distance based या geometry based algorithms, I must say. Right? ये देखा था आप लोगों ने. Since or other algorithms like regression or maybe KNN, these are based on geometry, on three-dimensional or n-dimensional geometry, and they work on distance of the data points. Due to this logic, they have several problems, several considerations. Now, decision tree not being based on geometry, but what it is based on? It is based on, what do you say? Conditional probability, I must say, conditions, if else if kind of thing. It works on an infinite sequence of if else if condition, and finally it gives the decision prediction. यही देखा था हमने. Then we talked about one disadvantage of decision tree. क्या था वो? Can somebody ping me quickly? What is the disadvantage of decision tree? Yep. हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? Yes, correct. We saw that इसका mechanism कुछ ऐसा है that it is a greedy learner. It tries to learn for each and every row possible. It will try to learn for each and every data point of training data set. दिक्कत क्या होती है इससे? This tendency leads this model into, right? ये देखा था आप लोगों ने, यही प्रॉब्लम था. अब क्वेश्चन आता है, can something be done about it? Can we do something about it? As it happens, yes, we can do something about it. बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? My problem is, it is greedy learner. It tends to go to infinite depth, which makes this model overfitted. Now I am asking, can we do something about it? Just ping in the chat box guys. कुछ समझ आ रहा है तो कुछ भी बताओ तो सही. सही, गलत. No, not even a wild guess. चलो मैं कोशिश करता हूँ.
and you and please tell me what do you think about what I am telling. मैं कह रहा हूँ ये ग्रीडी लर्नर है और अनलिमिटेड डेप्थ तक ये तब तक इतना डीप जाने की कोशिश करता है, इतना डीप जाने की कोशिश करता है जब तक ये एक एक डेटा पॉइंट को क्लासिफाई नहीं कर देता, यस नो या जो भी इसको कैटेगरी मिली, हर एक डेटा पॉइंट को क्लासिफाई करने की कोशिश करेगा। बात तो बड़ी अच्छी कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है वो। नाउ इन इट्स एंडेवर to learn everything from this data, it becomes, I am saying that it becomes overfitted on trained data. Oh wow, kind of, kind of. कंडीशंस कैसे होती हैं इसकी, आपने देखा था वेरिएबल्स पे होती हैं, वेरिएबल 1 लेस देन दिस हो जाए, वेरिएबल 2 ग्रेटर देन दिस हो जाए, वेरिएबल 3 इक्वल टू दिस हो जाए, ऐसी तो थी कंडीशन, देखा तो था आपने डिसीजन ट्री में हार्ट डिसीज वाला डेटा सेट पे, देखा था, ऐसे ही आ रही थी कंडीशन। अब वो चलो डेटा छोटा सा था तो 3 4 5 कंडीशन में खत्म हो गया था, इट वाज barely 200 300 rows of data. Just imagine if it is the millions of records in a data set and there are tens and twenties and fifties of variables. What will happen? I think it will go to the depth of, maybe 20 levels or 25 or maybe more than that. तो क्या कर सकते हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, ये जो अनलिमिटेड डेप्थ तक जाता है, अगर मैं इस डेप्थ को कंट्रोल कर दूं किसी तरीके से तो शायद काम हो जाएगा मेरा। थिंक अबाउट इट। अगर मैं इसको अनलिमिटेड डेप्थ तक नहीं जाने देता, जो इसकी टेंडेंसी होती है, यस करेक्ट, प्रूनिंग, वी कॉल इट प्रूनिंग। सुमित, इसका मतलब एलएमएस कंटेंट पढ़ रहे हो आप, so kudos to those who are doing it. वसुंधरा कैसे सोचा ये that we have to reduce these number of elements somehow? Are you reading LMS content? You are not there in the session, if I recall. बात तो सही की है उसने, करना तो यही है एक्चुअली। अच्छा, चलो, that's even better. It means your common sense is working just fine. हाँ, नहीं तो ज्यादा पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है लोगों का, हर चीज में साइंस ही ढूंढने लगते हैं। थैंक यू लॉर्ड। अच्छा, अच्छा, हेलो बाजी, चल ठीक है, पढ़ पढ़ लेते हैं, अभी बाद में करूंगा। ठीक है, यहाँ तक बड़ी जेन्युइन सी बात है कि अगर ये यहाँ इनफाइनाइट डेप्थ तक नहीं जाए तो काम हो जाएगा हमारा, उसी को हम बोलते हैं, वी कॉल दिस ट्रंकेटिंग भी बोलते हैं, प्रियोनिंग भी बोलते हैं। प्रियोनिंग, ट्रंकेटिंग क्या मतलब होता है इनका? वही मतलब होता है इनका जो इन जनरल होता है। Usually what does it mean? It means cutting down a plant or cutting down a tree, you know, in a systematic manner so that it doesn't die, but it doesn't grow haphazardly. So that's truncating and pruning. मतलब वही है इनका। तो ट्रंकेटिंग भी मिल सकता है कहीं देखने के लिए, वैसे वेरी पॉपुलरली इट इज कॉल्ड प्रूनिंग। आइए देखते हैं प्रूनिंग कैसे होती है। आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव दैट डेटा सेट एंड द आर कोड जो हम कर रहे थे हार्ट डिसीज वाला। यू गॉट दैट एवरीबॉडी, राइट?
ठीक है, तो रन कर रहा हूँ मैं, नथिंग डिफरेंट, ये वही है जो आप लोग देख चुके हो, वही रन किया है। लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में हमने वही देखा था, दैट हर डेटा रीड किया, जो फैक्टर थे, जो कैटेगोरिकल थे उनको कैरेक्टर या फैक्टर बनाया, स्प्लिट किया, ट्रेन एंड वैलिडेशन। द फंक्शन इज आर पार्ट, आर पार्ट स्टैंड्स फॉर रिकर्सिव पार्टीशनिंग। प्रोबेबिलिटीज देखें तो प्रोबेबिलिटी अलग तरह से आता है, थोड़ा सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह प्रोबेबिलिटीज का वेक्टर नहीं आता है, प्रोबेबिलिटीज का मैट्रिक्स आता है। इट गिव्स प्रोबेबिलिटीज फॉर yes and no both. I am interested in yes part, so I am taking column 2 of this matrix. Then हमने देखा था कि ये कट ऑफ 50 से करके देखा था, तो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी वर नॉट बैलेंस्ड, so we went ahead for some hit and try, and finally we ended up with a confident matrix where our model is 83% sensitive and 83% specific. So all in all, overall 83% with the balanced accuracy. This balanced accuracy, जब sensitivity और specificity balanced होते हैं, ये balanced accuracy increase होती है, so this is also a measure. Otherwise sensitivity specificity, that is more than enough. Positive clauses, yes, yeah, yes, of course I am more interested in knowing who will be detected patient. So this was all in all done. Check this out. How does this decision tree look? How does this decision tree look? This is how. और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जैसे अभी हमने कोई कंट्रोल नहीं किया, इट विल ट्राई टू गो as many levels as it gets as required to fit every data point of training data set. अब ट्रेनिंग डेटा सेट पे फिट हो चुका है बहुत अच्छे से, इनफाइनाइट जगह ये जहाँ तक इसकी मर्जी थी वहां तक जाने दिया हमने, एंड डिस्पाइट दैट व्हेन इट कम्स टू वैलिडेशन डेटा सेट इट इज मेकिंग मिस्टेक्स, नॉट मैनी बट स्टिल 83% ही आई है ना एक्यूरेसी, बाकी 17% तो गलत ही हुआ है इससे, करेक्ट. नाउ वी वांट टू सी can we control this by some parameters. Yes, we can control by these parameters. Unlimited डेप्थ तक जाने से रोकने के लिए there are several methods. देखते रहना क्या क्या पैरामीटर हैं, पहले पैरामीटर समझ लेते हैं, सिंटेक्स बाद में देख लेंगे, वो तो देख लेंगे कैसे. हाँ जी, कैसे रोकोगे? एक तरीका, वेरी सिंपल, सबसे सिंपल, मैंने कहा दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ऐसे ही जाता है डिसीजन ट्री, ऐसे इधर भी जा रहा होगा. इफ दैट बी द केस, तो अगर मैं दूर से देख रहा हूँ उसको, दिस इज लेवल 1 ऑफ दिस ट्री, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3 एंड सो ऑन. So I have facility to specify max depth parameter. For example, मैं max depth parameter define कर दूं 10. What does it mean? कि इस decision tree का कोई भी arm, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे कोई और हो, इससे अलग भी कोई हो तो वो भी, none of its arm can go beyond level 10. यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, जहाँ इनको level 10 मिल गया, this decision tree will stop there. इससे आगे वाला कोई split नहीं हो. Game over.
हो गया कंट्रोल। सिंपल, बढ़िया। नेक्स्ट पैरामीटर इज call it min split. Now what does this mean? We thought we begin with some data points. स्टार्टिंग में सपोज मेरे ट्रेन डेटा सेट में देयर वर n नंबर ऑफ रूल्स, तो यहाँ पर मेरे को कितने डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं? n, पहली कंडीशन स्प्लिट करने की। दूसरी कंडीशन में अब ये लेवल पूरा हो चुका है, अगर मैं कह रहा हूँ m रोज इधर आई हैं तो इधर कितनी बची? n माइनस m, yes or no? And eventually both are less than n, the parent. करेक्ट, ठीक बात है। अगली बार अगर इस m में से भी कुछ रोज निकल गई, सपोज यहाँ बचे x, तो यहाँ बचेंगे m माइनस x। अब ये कब तक चलता रहेगा? अगर मैं कहूँ यहाँ पर थी 1 मिलियन रोज, इफ आई से दीज वर 1 लाख रोज, सपोज यहाँ बचे 40,000, अगली बार 40,000 में से कम हो गए से 20K, दैट्स मेन स्प्लिट। मेन स्प्लिट पैरामीटर क्या कहता है? सपोज मैंने डिफाइन कर दिया मेन स्प्लिट इज 1000, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ से आगे अगर मेरे को स्प्लिट करना है तो मिनिमम 1000 रोज यहाँ होने चाहिए, 1000 डेटा पॉइंट यहाँ पर होने चाहिए। गॉट इट? तो बिल्कुल एक एक रो तक नहीं जाने दूंगा मैं अपने ट्री को। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? सपोज यहाँ पर स्प्लिट होने के बाद इट एंड्स अप विद 900 डेटा पॉइंट्स है, और इधर कितने भी अवेलेबल। अब नाउ दिस इज नॉट क्वालिफाइंग दिस कंडीशन। मिनिमम स्प्लिट के लिए मेरे को 1000 रोज चाहिए थे, यहाँ पर 9000 ही बचे हैं, सो इट विल नॉट गो बियॉन्ड दिस। यहाँ पर आकर के आपका ट्री बंद हो गया, ये वाली आर्म बंद होगी, ये वाली आर्म भी जा सकती है। अगर यहाँ पर 5000 डेटा पॉइंट्स हैं तो शायद ये वाली आर्म आगे जा सकती है अभी, बट सारी आर्म्स ऐसे रुक जाएंगी जहाँ पर मिनिमम 1000 डेटा पॉइंट्स होंगे। ठीक है, और डिसीजन कैसे होगा? अभी परफेक्ट होमोजेनिटी तो आई नहीं है यार। हो सकता है ना यहाँ पर, चलो कई सारे स्प्लिट हो चुके, लेकिन सपोज यहाँ पर अभी भी ऐसा हो कि 700 तो यस थे और 200 नो थे, तो अभी परफेक्ट होमोजेनिटी तो आई नहीं है, लेकिन ओवरफिट होने से बच गया ट्री मेरा। डिसीजन कैसे बताएगा? परफेक्ट होमोजेनिटी अगर नहीं भी मिली है इसको, तो जो मेजोरिटी होगी, समझ रहे हो? यहाँ पर अब अगले स्प्लिट की कंडीशन बनने की जगह यहाँ पर डिसीजन आ जाएगा इसका, और वो डिसीजन क्या होगा? जो भी मेजोरिटी हो, इन दिस केस यस। ये बात ठीक हो गई यहाँ तक मैंने स्प्लिट वाला कि हाँ ये केस समझ आया। ओके, देन देयर इज a third method. It is called min bucket. Min split and min bucket are very close.
बहुत हद तक एक जैसे लगते हैं लेकिन एक जैसे हैं नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने की कोशिश कर। ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी, समझ रहे हो? मैंने लिख रखा है मिन स्प्लिट शुड बी 1000, बहुत अच्छी बात है। मिन बकेट आई एम मेंशनिंग, आई एम मेंशनिंग मिन बकेट एज 500। अब इस बात का क्या मतलब? सपोज आपके पास कुछ डेटा पॉइंट्स थे एन, कुछ और एन से कुछ कम हो गए, ठीक है। एंड फाइनली ऐसे बहुत सारी कंडीशन 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 जाते जाते आपके पास यहाँ पर आकर के बचे 1100 डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो ये समझ रहे हो, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है आपकी, मिन स्प्लिट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आपके पास स्प्लिट करने के लिए अभी इस पैरामीटर से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हैं। सपोज आपने नेक्स्ट लेवल स्प्लिट कर दिया, इधर आ गए 700 डेटा पॉइंट्स, इधर आए 400 डेटा पॉइंट्स। तो आपका मिन बकेट पैरामीटर क्या कहता है? मिन बकेट पैरामीटर कहता है कि जब स्प्लिट हो जाए उसके बाद मिनिमम इतने डेटा पॉइंट्स होने चाहिए। मिन स्प्लिट क्या कह रहा है? स्प्लिट होने के लिए मुझे इतने चाहिए, पहले स्प्लिट होने के लिए इतने चाहिए, आगे की बात बाद में करेंगे। तो स्प्लिट होने के लिए तो इतने थे, लेकिन मिन बकेट क्या कह रहा है? जब स्प्लिट हो जाए तो इतने डेटा पॉइंट जरूर मिलने चाहिए अगली बकेट में। अब तुमने क्या किया, इस वाले को, किस वाले को, इस वाले को, इस वाले को स्प्लिट किया। ये वाला बकेट तो ठीक है, लेकिन ये वाला बकेट कैसा बना है? ये छोटा रह गया इससे, जो आपने पैरामीटर दिया हुआ था मिन बकेट का। सो दिस इज मिन बकेट पैरामीटर। तो मिन बकेट पैरामीटर क्या कह रहा है कि अगर स्प्लिट होने के बाद मेरे को इतने भी डेटा पॉइंट नहीं मिल रहे जितने चाहिए थे, तो ऐसा स्प्लिट नहीं होना चाहिए। आपका डिसीजन ट्री यहीं पर रुक जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी जो भी देखा था आपने, यहीं पर वो डिसीजन बता। डिफरेंस समझ आया दोनों बातों में? कंफ्यूज नहीं होना, इसमें पूछ लेते हैं। डिसीजन ट्री को कैसे कंट्रोल करोगे, क्या क्या मेथड हो सकते हैं? अच्छा, ये मेथड हो सकते हैं। तो मेन स्प्लिट और मेन बकेट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, क्लैरिटी। अरे बताओ, यस नो कुछ तो बोलो। दोनों से अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको।
Okay, let me check some frustration if there is any. Okay, see this animation. डिसीजन ट्री काम कैसा करता है? सपोज एक डॉक्टर का डायग्नोज हो और डॉक्टर नहीं है, डिसीजन ट्री कैसा काम करता है? ऐसे डॉक्टर तो तुम सब बने हो अपने जीवन में कभी ना कभी, एटलीस्ट मम्मी तो सबकी बनी है ना? देखते रहना। बोला हेडेक है, अच्छा बीपी की वजह से हो सकता है, ईसीजी करा लें। नहीं, फीवर भी है, तो फीवर वायरल तो नहीं है, वायरल भी नहीं है, तो कुछ और होगा, एंड सो ऑन। मैं आप लोगों को बता रहा था, सपोज ये पेशेंट्स का रियली पेशेंट्स का डेटा होता और हम एक पेशेंट्स के ग्रुप पे इस तरह का डायग्नोसिस कर रहे हैं, यस नो यस नो यस नो, इनफाइनाइट कंडीशंस। नाउ देखते रहना, तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज स्टार्ट ऑफ विद अ कंडीशन, नो वाले तो दिखाए नहीं। सपोज आई हैव 1000 डेटा पॉइंट्स स्टार्टिंग, मेरे पास 1000 लोग थे, ठीक है, जो हेडेक की प्रॉब्लम लेकर के आए। उन्होंने कहा हेडेक है, हमने कहा बीपी टेस्ट कर लेते हैं। सपोज उनमें से 600, हाँ बीपी भी निकल आया, बाकी 400 को बीपी नहीं निकला। जिनको बीपी नहीं निकला उनको हमने कहा ईसीजी करा दो, चलो ठीक है, ये बात इधर पहुंच गए। जिनको बीपी नहीं था उनको हमने चेक कर लिया कि फीवर है कि नहीं है, फीवर है कि नहीं है, अच्छा ठीक है। जिनको हम फीवर चेक कर रहे हैं से उनमें से 150 ऐसे निकले जिनको फीवर भी था, जिनको फीवर नहीं था ऐसे 250 थे। अब ये बात हमारे केस में कहाँ आ रही है? मैं कह रहा हूँ मिन स्प्लिट क्या होता है। मिन स्प्लिट ये होता है, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आए कितने, 400 पेशेंट्स यहाँ तक पहुँचे। अभी तक बाकी जो कंडीशन थी उन कंडीशंस को डील करते हुए यहाँ तक 400 डेटा पॉइंट्स पहुँचे। सपोज मैं कह रहा हूँ मिन स्प्लिट अगर मैं कह रहा हूँ मिन स्प्लिट इज 500, मैंने बोल रखा होता कि मिन स्प्लिट इज 500, मेरा डिसीजन ट्री अगर मिन स्प्लिट 500 है, 500 डेटा पॉइंट मिलेंगे तो उससे आगे की कंडीशन पे जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर आकर के ये कंडीशन फेल हो गई, तो ये इससे आगे फीवर वाली कंडीशन पे जाएगा ही नहीं। बात समझ आ गई है? यहाँ तक बात समझ आई? मेरे पास इससे आगे स्प्लिट करने के लिए सफिशिएंट डेटा पॉइंट्स नहीं है मेरी कंडीशन। ये तो हुआ मिन स्प्लिट, ठीक। सपोज मैंने कह रखा होता मिन स्प्लिट इज 300। अब इस केस में ठीक है, मैंने कहा था कि 300 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स होने चाहिए तो अगली कंडीशन पे स्प्लिट हो जाएगा। अब ठीक है, इन दिस केस ये ट्री आगे जाना चाहिए, मेरी कंडीशन थोड़ी रिलैक्स्ड है, तो अगली कंडीशन पे स्प्लिट होगा। अब स्प्लिट होगा, नाउ मिन बकेट क्या कहता है? सपोज मैंने एक पैरामीटर और भी देखा था, मिन स्प्लिट बोल रखा है 300, लेकिन साथ ही मिन बकेट बोल रखा है 200। तो मिन बकेट का मतलब क्या हुआ कि अब ये स्प्लिट होने के बजाय मिन बकेट, या आपका जो मिन स्प्लिट पैरामीटर था इसने छोड़ दिया है, इसने बोल दिया ठीक है जाओ स्प्लिट कर लो, मेरे हिसाब से तो ठीक है, 300 से कम नहीं होने चाहिए थे, 300 से ज्यादा ही, बिल्कुल ठीक बात है।
लेकिन जब स्प्लिट कर दिया आपने तो क्या हुआ, इधर चले गए 150, इधर चले गए 250। यही तो होगा, कुछ लोगों को फीवर नहीं निकलेगा, कुछ लोगों को फीवर निकलेगा। तो कुछ लोगों को नहीं निकला, वो तो इधर आ गए 250, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को निकल गया, वो बने कितने, ओनली 150। तो मिन बकेट क्या कह रहा है कि मिन स्प्लिट से तो बचाए हो, लेकिन अगले जो बकेट बनने चाहिए ना स्प्लिट हो गए, उनमें 200 डेटा पॉइंट भी होने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ फीवर पे स्प्लिट तो कर लो, लेकिन अगली बकेट में फिर 200 पॉइंट्स भी होने चाहिए, 200 ईच। वो नहीं आ रहे, यहाँ 250 है, यहाँ पर नहीं हो रही है कंडीशन सेटिस्फाई। तो अब की बार क्या कह रहा है, मेन स्प्लिट से तो बच गए थे, लेकिन मेन बकेट क्या कह रहा है, नहीं हो सकता ये स्प्लिट, क्योंकि अगले जो बकेट बन रहे हैं वो बन रहे हैं मेरे मिनिमम कंडीशन से छोटे। तो अगेन रिवर्स बैक, ये कंडीशन रन नहीं होगी, बिकॉज मेन बकेट ने फेल किया। आई होप अभी समझ आया हो शायद से। ठीक है, ओके। एक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम, ये तीनों पैरामीटर्स ऐसे हैं, कैसे हैं, कैसे डिसाइड करोगे कि डेप्थ 10 रखनी है या 12 रखनी है या 11 रखनी है? कैसा डिसाइड करोगे कि मिनिमम स्प्लिट 1000 होना चाहिए कि 2000 होना चाहिए या 5000 होना चाहिए? कैसा डिसाइड करोगे कि मिनिमम बकेट 1000 चाहिए कि 2000 चाहिए कि 5000 चाहिए? दिक्कत समझ गए? I am saying I have a data set of 50 columns and 1 million rows. क्या रखूं इन पैरामीटर्स को? मैक्स डेप्थ अगर मैं कह रहा हूँ 10, क्या पता 11th लेवल पे जाते ही एक्यूरेसी बहुत अच्छी होने वाली थी मेरे मॉडल की। मैक्स डेप्थ मैंने बोला 10, क्या पता 9th लेवल पे ही मेरा मॉडल ऑलरेडी ओवरफिट हो चुका है। प्रॉब्लम समझा कि नहीं, ये बताओ, सॉल्यूशन छोड़ो। हम्म। My question was, Sumit, that in any particular data set, how do you define this? मैं कह रहा हूँ टाइटैनिक डेटा सेट पे तुम डिसीजन ट्री बना रहे होते, मैक्स डेप्थ कितनी रखोगे अपने ट्री की, मिन स्प्लिट कितना रखोगे, मैक्स मिन बकेट कितना रखोगे? द प्रॉब्लम इज, हाउ डू वी डिसाइड दिस पर्टिकुलर नंबर? इट इज ऑल गेम ऑफ एक्सपीरियंस।
If you are experienced enough, you may not face much trouble. If you are comparatively beginner, you may have to hit and try with several values. There is one more parameter, we call it CP. CP stands for complexity parameter. Some people also mention to it as cost of partitioning. So cost of partitioning, that is a wrong derivation from name CP. Actually, the correct name जो उसको दिया गया है, that is complexity parameter. What does that CP means? देखते हैं. हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि मेरा ट्री अनलिमिटेड डेप्थ तक जाता है. सीपी, दिस कॉम्प्लेक्सिटी पैरामीटर, किस बेसिस पे इस ट्री को प्रून करेगा? Just pay attention. Suppose this was your root node. तो रूट नोड पे स्प्लिट हुआ. Suppose there were 1000 yes data point, 1000 no data point starting में. And now it begins. हाँ जी, क्या करता है डिसीजन ट्री? मालूम है आप लोगों को? किस हिसाब से वो डिसाइड, ये रूट नोड किस हिसाब से डिसाइड किया उसने? जहां उसे सबसे अच्छी होमोजेनिटी मिलेगी. अरे यही तो फंडा था उसका. Yes or no? दिस यार, दिस वाज ऑल द आइडिया बिहाइंड डिसीजन ट्री. तो होमोजेनिटी आती जानी चाहिए हर स्टेप पे. जितना ज्यादा होमोजेनस हो जाएंगी क्लासेस, उतना बढ़िया वो पार्टीशनिंग कर रहा है. फाइनली डिसीजन बता देता है. दिस वाज द होल कैलकुलेशन, दिस वाज द होल आइडिया बिहाइंड इट, दिस एल्गोरिथम. आ गई होमोजेनिटी. मैं अभी जस्ट पे अटेंशन टू मी. अभी जस्ट आई एम रिप्रेजेंटिंग इट इन परसेंटेजेस. तो डोंट स्टिक टू इट के परसेंटेज क्या है, मैं अब जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ. सपोज रूट नोड से आपकी होमोजेनिटी आ गई 60%. अगले लेवल पे होमोजेनिटी आ गई 70%. यही तो होगा, हर लेवल पे इंक्रीज होती जानी चाहिए, तभी फायदा है दूसरे स्प्लिट में. नहीं तो फायदा क्या हुआ? यस और नो? हर लेवल पे होमोजेनिटी इंक्रीज आए तभी फायदा है. अगर इंक्रीज नहीं हो रही है तो ऐसे स्प्लिट का फायदा नहीं है. चलो इंक्रीज आ रहा है, 70% हो गई. इस लेवल पे 75% हो गई, चलो ये भी माना. इस लेवल पे इंक्रीज हो गई कितनी? 75.2%. हाँ जी, कितनी इंक्रीज हुई है? 0.2%. या नंबर में लिखूं तो 0.002. दिस मैनी टाइम्स. परसेंटेज का ये मतलब हुआ. हाँ जी, रिमेम्बर जब आर स्क्वायर्ड में ऐसा चेंज आता था हम क्या करते थे डिग्रेशन में? आर स्क्वायर्ड में हमने वेरिएबल हटाया, ड्रॉप आया इतना, तो हम क्या कहते थे? हमने वेरिएबल हटाया, आर स्क्वायर्ड में ड्रॉप आया इतना, तो हम क्या कहते थे? हाँ ठीक है, आने दो ना, वेरिएबल तो जा रहा फालतू. ये फालतू वेरिएबल तो जाए. इतना सा ड्रॉप आया है. कितना सा? इतना सा. क्या फर्क पड़ रहा है? वही सीपी पैरामीटर भी कह रहा है.
सीपी पैरामीटर में हम डिफाइन करते हैं कि मेरे को मिनिमम चेंज इन होमोजेनिटी इतना तो आना ही चाहिए, अगर इतना भी नहीं आ रहा डोंट डू सच स्प्लिट। समझ गए? ठीक है। हाँ, इन द ईच स्टेप। यार ये तो ऑब्वियस है ना। अगर मेरे को इस स्टेप में ही, ये देख रहे हो, इस स्टेप में मेरे को आर इसमें होमोजेनिटी कितनी आ रही है? 0.2%। तो तुम क्या सोच रहे हो, इससे अगले स्टेप में 1% आ जाएगी या 5% आ जाएगा इंक्रीज? नहीं, इससे कम ही आएगा। यार यही तो आइडिया था इस डिसीजन ट्री का। हर स्टेप पे होमोजेनिटी इंक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज कितनी? जितनी ज्यादा हो सके उतनी। वो पहले ही स्टेप में कोशिश करेगा टू गेन मैक्सिमम होमोजेनिटी, परफेक्ट होमोजेनिटी। चलो पहले स्टेप में है। दूसरे में, तो दूसरे में तो होनी जानी चाहिए 100%। चलो दूसरे में 60 थी, 70 तक पहुंचे। तो तीसरे में फिर कोशिश करेगा कि 100% पहुंचनी है इस बार। चलो नहीं पहुंचे, 75 तक। यानी हर स्टेप पे वो कोशिश कर रहा है मैक्सिमम होमोजेनिटी पाने की। अब यहाँ आके उसके निकल गए प्राण। उसे नहीं मिल रहा और कोई वेरिएबल ऐसा जिसपे 100% छोड़ो 1% भी आ रही हो होमोजेनिटी। उसे मिल पा रही थी 0.2, उसने उस पर स्प्लिट कर दिया। वही कह रहे हैं हम सीवी पैरामीटर से, कि जहां प्राण निकल जाए वहां प्राण मत निकालो, रुक जाओ, सांस ले लो। अननेसेसरी आगे जाने का बेनिफिट नहीं है। ओवरफिट हो जाओ। ठीक है, अभी समझ आ गई बात ये। तो इन सब की कुछ कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑलरेडी होती हैं, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ से भी ट्री मेरा ओवरफिट हो रहा है, देन आई विल हैव टू चेंज दीज़ वैल्यूज़। लेट्स सी हैंड्स ऑन में कैसा करेंगे। ट्री मॉडल, बीआरपी, यही देखते थे। तो डिफ़ॉल्ट में हमारा ऐसा ही बना था कुछ। देखिए कोड मत करना, कोड तो ये ऑलरेडी है आपके पास। चेंज जब मैं करूँगा तो मैं भेज दूँगा इन द चैट बॉक्स। तो मॉडल यही बना था। नाउ आई डोंट वांट टू गेट दिस टू डिफ़ॉल्ट, आई डोंट वांट इट टू गो टू अनलिमिटेड डेप्थ। So I'm writing in next line. The keyword is control. तो control जैसे टाइप करता हूँ ऑटो सजेशन आता है, and then it asks me to give parameters in the function is rpart control, rpart dot control, and within this I can give many things. On my screen you see these default values. rpart control में वो ऑटो सजेशन में दिखा रहा है ना। तो by default min split is 20, 20l, 20l means integer, यानी minimum split is 20 data points. Min bucket is
something something. CP is something, then there is surrogate parameter, we are not going into that. Majorly ये 4 ही पैरामीटर हैं, तो हर एक के लिए उसने कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज हैं. इफ यू वांट टू ट्वीक इट, यस वी कैन ट्वीक इट. फॉर एग्जांपल, इफ आई से max depth is equal to I want only 2 levels. I don't want my decision tree beyond 2 models. What happens? My tree model will be, wow, only 2 models, 2 steps. If I say 3, let's see. I think 3 में तो ये पूरा बन ही गया था. छोटा सा डेटा है ना. हाँ, 3 लेवल्स तो बाय डिफॉल्ट में 3 में कंप्लीट हो रहा था. चलो नेक्स्ट स्टेप कुछ और देखते हैं. मेन स्प्लिट. सपोज आई से मेन स्प्लिट इज आई नीड 50 डेटा पॉइंट्स टू स्प्लिट. अगर 50 से कम हो जाए किसी स्प्लिट पे डेटा सेट तो आगे नहीं जाएगा. एनी चेंज? Oh, again the decision tree cut short. You are getting the gist? अब वो अनलिमिटेड डेप्थ तक नहीं जा रहा है. प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. द ओवरफिटिंग प्रॉब्लम इज सॉर्टेड. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. बढ़िया चल रहा है. मुझे प्रॉब्लम है, दिखाता हूँ. हमने डिसीजन ट्री को अनलिमिटेड डेप्थ तक नहीं जाने दिया. मैक्स डेप्थ से रोका था. लेवल 2 करते, चलो मैंने स्प्लिट से भी देख लिया. दोनों से मोरलेस वही काम हो रहा है. खैर, पर हाँ ठीक है. एनीवे अनलिमिटेड डेप्थ तक नहीं गया. चलो करते हैं प्रेडिक्शन. अब हमारा डिसीजन ट्री कंट्रोल्ड है. लेट्स प्रेडिक्ट. इट हैज गिवन प्रोबेबिलिटीज. लेट्स चेक समरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज. यस नो नाम के 2 उसने कॉलम दे दिया और उनमें प्रोबेबिलिटीज है. मेरे को इंटरेस्ट है यस प्रोबेबिलिटीज में. ओके, हमने लगाया प्रेडिक्शन यस और नो का. एस फैक्टर. टाइप मत करना, अभी टाइप मत करना, बस देखते रहना. कोड में भेजूंगा. इफ आई चेक कंफ्यूजन मैट्रिक्स, व्हाट हैपेंस फाइनली? मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तो मैं समझाता रहता हूँ लेकिन खुद भूल जाता हूँ. कॉन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, उसको एस फैक्टर चाहिए, इसलिए एरर दे दिया उसने. एंड व्हाट हैपेंस? Accuracy 75, sensitivity is 50, specificity is 96. Oh, you see, sensitivity is way too low, specificity is way too high. Correct? तो क्या करते थे आप? हाँ जी, क्या करते थे? हाँ, प्रोबेबिलिटी में कुछ खेला खाली करते थे. ओके, तो अभी सेंसिटिविटी 50% है, स्पेसिफिसिटी 96% है. तो मैं क्या करता हूँ, प्रोबेबिलिटी हमने लिया था 50% कट ऑफ. देखो मैंने लिया 22% कट ऑफ. 22% कट ऑफ लिया तो क्या होगा?
सेंसिटिविटी 66% हो गई, स्पेसिफिसिटी थोड़ी सी कम हो गई। बहुत अच्छी बात है ना। 50% से ये बैलेंस अच्छा नहीं आ रहा, 22% पे ये बैलेंस कुछ तो ठीक हुआ पहले से। तो और नीचे ले जाते हैं, शायद और ठीक हो जाएगा। 22 की जगह 21 कर लेता हूँ, तो शायद और ठीक हो जाएगा। देखो कितना ठीक हुआ। जस्ट 1% चेंज होने से व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। आपने अपने डिसीजन ट्री को ओवरफिट होने से बचा लिया। ऑन द अदर हैंड, इसको मैं दूसरी तरह से बोलूं, टू अ लिमिट यू हैव limited your model to an extent to you have forced your model into underfitting. Getting it? You are not letting it overfit. In other words, you are forcing it to underfit to an extent. This is called, शायद नाम सुना हो आप में से कुछ लोगों ने, this is called bias variance trade off. आपका मॉडल बायस था तो वेरिएंस बहुत कम थी, आपका मॉडल अब वेरिएंस हाई है, अब वेरिएंस नहीं है, तो बायस बहुत ज्यादा हो गया। किस केस में? यही देख रहे थे हम, मैक्स स्टेप, मेन स्प्लिट, मेन बकेट। मेन बकेट इज अगेन मोर और लेस कुछ ऐसा ही हो जाएगा, ट्राई कर लेना। सो दैट्स व्हाई आई से दिस कॉम्प्लेक्सिटी पैरामीटर। इन तीनों में प्रॉब्लम क्या थी? पहले तो ये समझ नहीं आ रहा कि वैल्यू रखनी है तो कितनी रखनी है। वैल्यू रख के देखी तो पता लगा पहले ओवरफिट हो रहा था, अब अंडरफिट हो गया। पहले ओवरफिटिंग की वजह से अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था, अब अंडरफिटेड है इसलिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। तो बाय फार सीपी इज द मोस्ट लॉजिकल वन। ये सीपी क्या कहता है कि मिनिमम अगर इतना चेंज भी नहीं आ रहा है होमोजेनिटी में, डोंट डू सच स्प्लिट्स। लेट्स गेट बैक। हम कह रहे हैं ये बेवकूफ़ जैसे हिट एंड ट्राई नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप मैं कह रहा हूँ सीपी इज इक्वल टू 0.05। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, अगर किसी स्प्लिट में 5% चेंज भी नहीं आ रहा है होमोजेनिटी में, ऐसा स्प्लिट मत करो। जब ये नहीं था तो कैसा बन रहा था ट्री? ट्री आपका, देखते हैं, दोबारा बना देता हूँ सो दैट यू कैन कंपेयर। ऐसा था आपका डिसीजन ट्री। Now I am mentioning the control parameter, the complexity parameter. I am calling it CP and I am setting its value to 5%। कि 5% भी अगर होमोजेनिटी में चेंज नहीं आ रहा तो इससे आगे स्प्लिट मत करना। अब मुझे ना डेप्थ पता है, ना मेन स्प्लिट, ना मेन बकेट, मुझे मतलब नहीं है किसी बात से, अपने आप देख लो। बस होमोजेनिटी में मिनिमम चेंज 5% तो आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा मत बढ़ो आगे। सो डिसीजन ट्री बना इस बार कुछ ऐसा। ये कुछ छोटा हुआ है क्या पहले से?
पहले ऐसा था। if you if you check this condition, this is gone, और यहाँ पे उसने इस कंडीशन को टेस्ट करने की जगह यहाँ पर डिसीजन दिया है। यू सी दैट? अब वहां पर उस कंडीशन पे स्प्लिट नहीं कर रहा है, वहां पर उसने डिसीजन दे दिया है। नो, शायद ये मेजोरिटी आ रही होगी। परफेक्ट होमोजेनिटी नहीं है लेकिन मेजोरिटी हो। तो यू गॉट द आइडिया? अभी मेरे को मैनुअली कुछ नहीं दिमाग लगाना है। एंड लेट्स चेक दिस आउट। ठीक है, हमारे डिसीजन ट्री की पावर कितनी है ये देखें अभी। लेट्स प्रेडिक्ट विद दिस मॉडल नाउ। आई प्रेडिक्ट समरी। ओके, अगेन समरी तो आएगी प्रोबेबिलिटीज की। अगेन कट ऑफ 50% से तो काम नहीं होता, वो तो हमने देख रखा है। आई एम कीपिंग इट 25। इफ आई चेक कॉन्फिडेंस मैट्रिक्स, व्हाट डज इट से? व्हाट डज इट से? गॉट द आइडिया राइट? मेरा डिसीजन ट्री पहले से छोटा बना है। नाउ इट इज कंट्रोल्ड, इट इज नॉट गोइंग टू अननेसेसरी स्टेप्स, एंड डिस्पाइट दैट यू से। हाँ जी, है कि नहीं? सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी। जब वही सफेदी वही झाग कम दाम में मिले, तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले? ले लो। Here it is, the control parameter CP. तो प्रैक्टिकली हाँ जी, काम आसान हो गया ना थोड़ा। Rather than playing around with max depth, min split, this and that, it is better to hit and try with different values of CP. By default value, it is 1%. Typically, it can be 2 or 3%. This was a small, very small data set, so we can go up to 5%. तो ट्री भी कंट्रोल हो गया, ओवरफिट भी नहीं हो रहा है, अंडरफिट भी नहीं हो रहा है। तो फिर वो बाकी सब पढ़ा क्यों रहे थे आप हमें? मेन स्प्लिट, मेन बकेट, मतलब कंफ्यूजन तक हो गया हमें। क्यों पढ़ा रहे थे? इंटरव्यू के लिए पढ़ा रहे थे। सेट वैसे नहीं करते, वही बता रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट 1% होती है। अगर आपने कुछ मेंशन नहीं किया है तो 1% थी। पहला जो ट्री आ रहा था दैट वाज ऑन सीपी 1%। नाउ आई एम मेंशनिंग सीपी दिस मच।
I can't hear me. Guys, am I audible clearly? Please confirm. Sumit, then it seems like problem at your end. Others are confirming that it is just fine. ठीक है, you got the code, people? You are running? देख लेना इसको, ठीक है ना? CP की जगह max step, min split, min bucket. I want you to tune this model by all parameters one by one. Hit and try. देखो खेल के थोड़ा सा कुछ वैल्यूज रख के देखो अपने मन माने. Your overall data is your overall data points in train data set are 200 something. Okay, let's do one thing. It's okay. I think should we take a break? Should we break off here for a few minutes? Hectic तो नहीं हुआ? करके देखना थोड़ा सा अपने आप. अरे बोलोगे? चलो चलो, sounds good. ठीक है, let's break for some 10 minutes and then we shall continue. Let's fix my mic clock. Okay, ये let me on. Well guys, so we connect after 10 minutes. Please be in time. Okay, let's start off again. Now the idea of homogeneity measures. This is again something important, you should know it. You have seen that कि अभी heart disease वाले data set में it is splitted on a condition that cell should be less than something, and if this be the condition, इधर चले जाओ, and we agree to the fact that it works on homogeneity measure कि homogeneity इससे सबसे अच्छी आ गई हो. Now tell me one thing, suppose it is cell and it does say इसने कुछ 1 इधर भेज दिए, say 100, and there are some zeros, say 50. On the other hand, it has done say 1 इधर 0 है, and the zeros here are
से हाउ मैनी, जितने भी बचे, से 60 और 70, और एप्स ये डेटा आ गया। मैं कह रहा हूँ अगर ये किसी कंडीशन और कोई कंडीशन से BP शुड बी लेस देन 150 इससे स्प्लिट करता, तो वो स्प्लिट कैसा होता? तब भी तो यही होता, कुछ 10 इधर चले जाते, कुछ 10 इधर चले जाते। नाउ बाय व्हाट इट इज मेजरिंग, ये किस हिसाब से इसको कह रहा है कि दिस इज माय होमोजेनिटी, दिस वाज H1, यहाँ से भी उसने कुछ होमोजेनिटी किसी हिसाब से तो मेजर की होगी जिससे वो H2 आया होगा। सो दिस H1 एंड H2 शुड बी मेजरेबल, उनके बेसिस पे तभी तो ये कह रहा है कि H1 इज ग्रेटर देन H2 इन सम वे। ये कैसे डिसाइड किया इसने कि इतने 1 इतने 0 इधर, इतने 1 इतने 0 इधर, तो ये होमोजेनिटी बेटर है रादर देन दिस जो भी थी, तो ये मेजर कैसे होगा? So we need something to measure this homogeneity. So there are usually three parameters, basically two parameters. Default parameter जिससे आपका ट्री अभी स्प्लिट हुआ है, it is called Gini index. This Gini index is we call the Gini index as summation of probability. अभी समझेंगे इसको क्या क्या मतलब है इसका, probability square, where I varies from 1 to k. K means number of categories in target variable. ऐसा वेरी कर रहा है, अभी मतलब समझते हैं इसका 1 मिनट में। लेट्स से ये डेटा सेट, ये एक डेटा सेट है, कौन सा, ये टेबल छोड़ दो अभी, दिस इज अ डेटा सेट। ऐसा कुछ आप पहले भी देख चुके हैं। इनमें से कुछ लोग जैसा आपका HR वाला डेटा सेट है, जैसा मोरलेस वैसा सही है ये भी। कुछ कुछ लोग प्रमोट हुए, कुछ लोग प्रमोट नहीं हुए। ओके वेल, गिव मी अ मिनट गाइस, मीनवाइल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेटा। यू गॉट सम आइडिया राइट, क्या करने वाले हम होमोजेनिटी देखने वाले हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है कि पहला स्प्लिट मैं या तो एज के बेसिस पे ले लूँ, इनमें कंडीशन क्या होगी, वेदर एज इज अप टू 50 और अबव 50, तो कुछ लोग इधर चले जाएंगे, कुछ लोग उधर चले जाएंगे, और देखते हैं उससे होमोजेनिटी कितना आता है। या दूसरा ऑप्शन हो सकता है मैं जेंडर के बेसिस पे कर लूँ, मेल इधर चले जाएं, फीमेल उधर चले जाएं, तो अब देखते हैं होमोजेनिटी कितना आता है। होमोजेनिटी इन दिस टारगेट क्लास प्रमोट होते हैं कि नहीं होते। Should I send this Excel sheet to you? You want to do it along with me? I think that's a good idea. We can do that. या नहीं, क्या रखा है इन बातों में?
एनीवे मैं भेज दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, करना मत करना। Here it is, to your mail ID. डाउनलोड कर दीजिए, देखते हैं। ठीक है, देखते रहिएगा, कर लेना बाद में। हाँ, बाद में चाहे वीडियो देख करके, रिकॉर्डिंग देख करके आराम से फॉलो कर लेना साथ में, ठीक है। हो सकता है बिल्कुल साथ में कर नहीं पाओ, बट फॉर नाउ पे अटेंशन। तो देखते हैं, फर्स्ट टेबल इज, अगर मैं स्प्लिट कर लूँ एज के बेसिस पे तो क्या होने वाला है। लेट्स लेट्स सी क्या होने वाला है। सो आई एम स्प्लिटिंग बाय एज। देखें जरा एज में कितने लोग हैं। अगर एज पे स्प्लिट कर लूँ तो यही होगा ना, कुछ लोग अबव 50 हैं, कुछ लोग बिलो 50 हैं। हमारा डेटा सेट तो यही कह रहा है, मेरे डेटा सेट में यही तो कॉलम है। मेरे पास एग्जैक्ट एज नहीं है, दे हैव कैटेगराइज्ड इट ऑलरेडी अप टू 50, अबव 50। तो उसी में देख रहा हूँ, लेट्स काउंट देम। अबव 50 वाले कितने हैं। तो अबव 50 आर सम 30 पीपल आउट ऑफ 100। ठीक है, देख लीजिए, टोटल 100 लोग थे, 100 में से आई एम रनिंग अ फिल्टर ऑन एज 50, अबव 50, so there are some 30 people who are above 50। ठीक है, जब अबव 30 लोगों की बात कर रहे हैं, अबव 30 का फिल्टर ऑलरेडी लग चुका है। लेट्स सी हाउ मेनी आर प्रमोटेड। तो 30 में से हाउ मेनी आर प्रमोटेड, 5 आर प्रमोटेड। समझ पा रहे हो। अबव 50 टोटल 30 थे, 5 प्रमोटेड, 25 नॉट प्रमोटेड, टोटल 30 लोग थे। बिलो 50, बिलो 50 में क्या सीन है ये देख लेते हैं। तो अप टू 50 वाले लोग कितने होने चाहिए। दैट्स अ सिंपल, 70 होने चाहिए। इन 70 में से देखें कितने प्रमोट हुए हैं। एंड वी सी 30 आर प्रमोटेड, 40 नॉट प्रमोटेड। तो 30 प्रमोटेड, 40 नॉट प्रमोटेड, टोटल 70 हो गए। 100 लोगों का डेटा था, प्रमोशन नॉन प्रमोशन इतने इतने हुए हैं। अगर स्प्लिट कर रहे होते एज से तो गए। कैन समबडी कंफर्म, एम आई क्लियरली ऑडिबल। वसुंधरा, एम आई ऑडिबल नाउ। I held for a couple minutes, but I should be clearly audible now.
ओके, यहाँ तक कहानी कब हो रही है? अगर एज पे स्प्लिट हो रहा होता। लेट्स सी अगर जेंडर पे स्प्लिट करते तो क्या होता? ओके, लेट्स नॉट सेलेक्ट ऑल, लेट्स कीप इट टू female employees only, and let's see how many there are. So okay, 50 employees female, that underlines that 50 must be male. प्रमोशन का परसेंटेज देखें इनमें, फीमेल्स में, let's see only promoted females, so they are how many? 5 only. तो if I split it by gender तो क्या सीन हो रहा होता? आइए वो भी देखते हैं। 5 promoted, 45 not promoted, total 50. Let's see what happens when these are males. तो मेल्स 50 होने चाहिए, हाँ 50 ही हैं, दैट वाज ऑब्वियस। लेट्स सी प्रमोट कितने होते हैं। We see yes, how many are promoted, and we see 30 promoted, which means 20 not promoted. 20 are not promoted, 30 are promoted, so total 50 males. Now before going to Gini index or something, what do you see? Do you realize प्रॉब्लम क्या था मेरा? मैं किसको बोलूं, किससे होमोजेनिटी बेटर आएगा मेरा? अगर एज से स्प्लिट कर रहा हूं तो, या जेंडर से स्प्लिट कर रहा हूं तो? नहीं लग रहा ना ऐसे देख के अंदाजा? बोलो, नहीं लग पा रहा है ऐसे? क्लियरली कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है ऐसे। किसकी होमोजेनिटी समझ में आ रही है कि तुम्हें ये बेटर होगा? प्रॉब्लम एस्टेब्लिश्ड। इसलिए हमें कोई मेजर चाहिए, तो हम कह रहे हैं गिनी इंडेक्स विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट क्लास स्क्वायर के स्प्लिट करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट क्लास स्क्वायर क्या बचा, कितना बचा, आओ देखते हैं। हाँ जी, अबाउ 50 लोगों में हमने स्प्लिट किया, टोटल इतने थे, और उनमें से यस होने की, प्रमोशन होने के चांस कितने हो गए? कितने हो गए? अरे कितनी हुई है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ यस स्क्वायर I think very straightforward, 5 divided by 30 square. Let's put this with equal to sign तो कैलकुलेशन हो जाए। यही तो हुआ। अबव 50 में, अबव 50 की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ,
अबव 50 में प्रमोशन होने का प्रोबेबिलिटी स्क्वायर इतना, समेशन मेरे को सारी प्रोबेबिलिटीज चाहिए, तो अबव 50 में प्रमोशन नहीं होने का चांस कितना, हाँ जी कितना, 25 डिवाइडेड बाय 30, और हाँ प्रोबेबिलिटी स्क्वायर कर रहे थे तो इसका स्क्वायर, समझ आ रहा है। ये हुई बात किस क्लास की, अबव 50 वालों की। अब पकड़ते हैं किनको, अप टू 50। हाँ जी, आई वॉन्ट यू टू रेस्पॉन्ड, आई वॉन्ट यू पीपल टू रेस्पॉन्ड। अप टू 50 वाली क्लास में प्रमोशन होने का चांस कितना है, प्लीज रेस्पॉन्ड एवरीबॉडी। You know everything, how many were promoted and how many are the total, लिखा हुआ है सब वहाँ। What is the probability of people getting yes in promotion column in up to 50 class? If you guys were doing it along with me, if you understood it well, I want you to try it for gender. The table is ready. Gini index will be calculated by itself. You just have to put in the probabilities. Numbers ये हैं. These are 50, these are 50. इतने प्रमोशन हुए, इतने प्रमोशन नहीं हुए फीमेल क्लास में। मेल क्लास में this many promotions didn't happen, this many promotions did happen. लिखा हुआ है नीचे क्या करना है, probability of promotion square into what, probability of being female already. Same goes for males, probability of promotion square and probability of non-promotion square, and finally नीचे Gini index will be calculated by itself. It is auto calculated. So just give it a try. Try doing it by yourself. Let's see this for this one again, and okay, maybe you can try it later along with the recording. What did we say? Pi square, Gini index is summation of pi squares. Probability square, probability of what? Probability of target classes. Target classes vary from 1 to C. It will start with target class 1 and goes up to target class as many classes are there. Here in this case there are only 2, promoted and non-promoted. So probability square of being promoted, how much is this? हम कह रहे हैं if I check for female class, mark them. Okay, let's mark them. तो फीमेल क्लास में जब हमने स्प्लिट कर दिया तो दो स्प्लिट हुए होंगे ना, जेंडर से स्प्लिट करने से दो कॉलम बन गए होंगे। वन ब्लॉक इज फॉर फीमेल, वन ब्लॉक इज फॉर मेल। फीमेल ब्लॉक में
what is the pi square. So what is the probability of promotion square in female block? How many promotions there were? 5 promotions divided by grand total. यही तो probability हुई. Females हैं कितनी? 50. It was 5. It is 50. This is the probability. हम कह रहे हैं स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर. Now this is probability of promotion square when female has already happened, multiplied by probability of being female in the data set. That will be 50 out of 100. वो तो हमारा already observation बता रहा है. There are 100 employees, out of them 50 are female. So this becomes probability of promotion square when female is already the block. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? Probability of non promotion square when block is already female. हाँ जी, नॉन प्रमोशन के चांसेस क्या हो गए? 45 डिवाइडेड बाय 50. इसका तो स्क्वायर. वाओ सुमित, करेक्ट सही कर लिया तुमने. मल्टीप्लाइड बाय दिस इज promotion probability of non promotion square. Now let's come to probability of getting in female block, that is again 50 divided by 100. It amounts to this much. Now similar story goes for male category. When block male has already happened, block is male. अब देख रहे हैं probability of promotion square. What is probability of promotion? 20 प्रमोट हुए हैं out of 50 people. So this is probability of promotion square. But when block is already male होने की probability, that is 50 by 100. So this amounts to this much. ये भी ठीक हुआ. Now probability of non-promotion square in male block. Probability of non-promotions, there are, अच्छा ये उल्टा हो गया. This one was 20. This one is 30 actually. 30 got promoted in male block. 30 हुए थे ना मेल ब्लॉक में, मैंने 20 लिख दिया था गलती से. नॉन प्रमोशन इज 20. एनीवे probability of non promotion, that is 20 by 50 square when the block is already male आने की probability इस डेटा सेट में 100 लोगों में से 50 मेल हैं तो at random chosen. What is the probability of picking a male? That is 50 by 100. So this is your Gini index if you split by gender. थोड़ा थोड़ा समझ आया? सी ये मैनुअली करना नहीं होता, बट यू शुड नो के व्हाट इज द कैलकुलेशन बिहाइंड द स्क्रीन. किस बेसिस पे डिसाइड किया इसने? If I was not measuring Gini index, how would I know which has given me better homogeneity? So I need to measure it in a tangible number somehow. I need to be in a measurable quantity. Now I certainly know that Gini index is better when I split by gender. तो behind the screen वो मेरा decision tree वही करेगा. It will prefer gender rather than age. प्रसून कुछ गलत हो गया मेरे ख्याल से. हाँ प्लीज रन इट अगेन, चेक इट अगेन. कुछ तो गलत हुआ है. समथिंग ब्लंडर्स. सी हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, बट यू नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ
Just for the sake of keeping you happy, I don't want to go easy on you. If it is required, we will struggle again. But you should know the important things at least. I used to say that you don't need to know everything. So this is Gini index. Recently, there has been a term coming up, Gini impurity. It is nothing but it is 1 minus वही जो भी आपने कैलकुलेट किया है, 1 minus summation of pi square. तो as you already can make out, Gini index जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होमोजेनिटी है. हाँ जी, what about Gini impurity? वन माइनस रिवर्स हो गया. इम्प्योरिटी नाम में ही है उसके, इम्प्योरिटी जितनी कम हो उतना अच्छा है. तो मैनी टाइम्स ऐसा भी होगा, मिस्टेकनली पीपल आर कैलकुलेटिंग दिस एंड कॉलिंग इट Gini इंडेक्स. ऐसा भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए. कैलकुलेशन ये कर रहे हैं लेकिन गलती से उसे Gini इंडेक्स ही बोल रहे हैं. देयर इज अ वेरी नैरो डिफरेंस, और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. Then there is another thing, it is called entropy. एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? वही जो नाम है इसका, आया था ना बहुत पहले कहाँ पढ़ा था ये, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कहीं पढ़ा था ना, एंट्रोपी. व्हाट इट यूज्ड टू बी. एंट्रोपी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस. So it is reverse of homogeneity. Homogeneity means randomness नहीं है. Your data is homogeneous. There are two homogeneous classes. Entropy is कि उनमें randomness कितना है. How randomly there are 1 and 0 mixing in all together. So entropy is calculated like this is formula for entropy. वही जैसे pi square calculate कर रहे थे, so entropy can be calculated this way. It is with a negative sign. Negative sign implies that it is reverse of homogeneity. It is inversely proportional. जो भी आप मेजर कर रहे हो, so that's why negative sign. So it is जहाँ जहाँ pi square करते थे, now it is pi into log of pi and log on base 2. ठीक है, हैव अ गुड लुक एट दिस. लिखना का लिख के डाल दो, मिल जाएगा, गूगल कर लेना. What I want you to do is, जैसे अभी गिनी इंडेक्स कैलकुलेट किया था, कैन यू फाइंड आउट कि एंट्रोपी क्या क्या आ रही है. जैसे गिनी इंडेक्स आया है ऐसे ही एंट्रोपी भी आएगी, कुछ कैलकुलेट करोगे तो. गिनी इंडेक्स वाज समेशन ऑफ pi स्क्वायर. एंट्रोपी इज माइनस नेगेटिव समेशन ऑफ pi into log base 2 pi. करेंगे जरा कैलकुलेट.
ठीक है जी, व्हाट आई मीन टू से, देख लेना, करके देखना, एंट्रोपी भी कैलकुलेट करके देखना। Meanwhile, you can follow this. Recording मिल जाएगा आप लोगों को by today itself or latest by tomorrow. Coming on to the छोटा सा होमवर्क देके छोड़ा था मैंने, आप लोगों को करके देखा है क्या? I wanted to run, I wanted you to run decision tree on various target classes. आपका टारगेट बायनॉमियल हो सकता है, मल्टीनॉमियल हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। डिसीजन ट्री वर्क्स ऑल द सेम फॉर देम। करके देख लिया क्या आप लोगों ने? प्रॉब्लम आया, क्या प्रॉब्लम आया? जीरो एक्यूरेसी इन प्राइस। बाकी लोगों का देखा ही नहीं है करके। ठीक है संकल्प, ओके, you may send me a code and I'll check। कुछ ना कुछ उसमें ट्वीक होगा, छोटा मोटा कोई मिस्टेक होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो जस्ट ड्रॉप मी योर कोड, आई विल रिवर्ट ऑन योर पर्सनल ईमेल। ठीक है, लेट्स नॉट डिस्टर्ब अदर्स, दे आर वे टू बिजी डूइंग बेटर थिंग्स। Okay, very fine. Let's call it a day. We'll connect tomorrow. And yes, Sankalp, I will drop it separately. Let's take this up separately. Very well, guys. Now turning off recording. If there is any question, I can stay for a couple minutes. If no further question, you are free to leave. Bye bye and take care. We'll connect tomorrow again, same time. So you must sign off. Bye.